भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लेकिन न्यायतंत्र धीमा, 5 करोड़ केसों का भराव। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला विशाल देश है, लेकिन विश्व में सबसे धीमा न्यायतंत्र भारत में है। भारत के न्यायालय में 5 करोड़ से अधिक केसों का भराव है। इससे जनता को समय पर न्याय मिलता रहे, उसके लिए केंद्र सरकार को न्यायतंत्र के लिए वित्तीय प्रावधान बढ़ाना चाहिए, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए और 4 से अधिक सुनवाई नहीं से न्याय का फैसला करना चाहिए, ऐसा फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के चेयरमैन भगवानजी भाई रयानी ने कहा। इतना ही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 12 o'clock and we are starting our proceedings of this press conference here hosted by Forum for Fast Justice. I'll be giving you a small history of the Forum for Fast Week, how it was formed. Friends, in 2002, Supreme Court gave a landmark judgment that then in 2002, 10.5 judges per million of the country. I will repeat, 10.5 judges per million population. Supreme Court order Union Minister, Union of India, as well all 27 states, that time 27 states, now it is 28 states, and Union territories, to increase the state judges strength from 10 to 5 justices to 50 judges per million population. That was recommended by Law Commission of India as well as Parliamentary Committee. And the strength of 50 judges was to be completed by the nation, whole country, within 5 years. With increasing the budgetary provision as well as creating necessary infrastructure, that is the increasing the courts, staff, etc. But nothing has been done so far. The Supreme Court itself slept over. सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ काम करना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ काम करना नहीं है, उनको कोई खर्चा करना नहीं है। इस वाई 10.252 judgment 22 years before the population also increased, so 10.52 15 judges हो गए होंगे अभी तक, but that is not enough compared to other countries where United States is having 107 judges per million population. Like that, other advanced countries have many more judges than what we Indians we have. That's why is prolonging years, decades and decades, and sometimes, as you have been given the souvenir copy, everybody is having souvenir copy. The New York Times also has written that Indian judiciary is quite evil. जिंदगियां चली जाती है मगर जजमेंट नहीं आता. So this is what you will find के why the Forum for Fast Justice, for implementing their judgment from 10.5 judges to 50 judges, we went to court. A well-known advocate, senior advocate, Prashant Bhushan, filed the petition on our behalf. But it was
tagged with some criminal petition and nothing has been done so far. So this is what we did it. We have presence in 23 states. We formed the Society for Past Justice, what is written, it is Mumbai. But like that 115 societies we got it registered in different cities. And we took out a Nyay Yatra for 35 days. We started from Delhi and ended at Jantar Mantar, Delhi. 200 villages and towns we covered. 18,000 kilometers we traveled for 35 days. And then every year we had our convention. 150, 200 people used to come. But then COVID-19, Corona struck. And we met from 2008 to 2014 till Congress government was overturned and BJP came. But right from Nehru to Modi, all the ministers 76 years, 77 years, whatever आज़ादी हमको मिला, मगर किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया. There is a record that 1956 there were 22 lakh cases were pending in Indian courts. Now, as on December 23, a year before, the record, an official record declared by Law Minister Meghwal, that 5 crore plus cases are pending, and that is a bulging year by year after year. जिंदगियां चली जाती है मगर न्याय नहीं मिलता है किसी को. So this is the situation, and we went to who is who of the country, that is members of parliament, MLAs, ministers, law ministers, etc., etc. But everybody promised us that this is your very good movement to improve the judiciary system. Everyone promised, hundreds and hundreds of lawmakers promised it, but nothing has happened so far. And that is the reason why we have to create the NGO. It is a trust, a registered trust. And I will tell you that when we formed this trust, Forum for Past Justice, we used to go to beg donations from the people knew us and from the people we didn't know and they didn't know us. किसी को भरोसा नहीं बैठता था कि जुडिशरी में कुछ हो सकेगा, because they know that Indian bureaucracy and people who are not interested, mainly the governments are not interested. But still, they went on paying us, because कुछ काम तो let the Forum for Past Justice fail, but let them try. That is what it was created, Forum for Past Justice. And of course, our 115 societies all registered all over the country in 23 states. The spirit is dampened
but the show must go on, and we are still hopeful that something will be done in near future. So this is what I have to tell you in nutshell, and here Sandeep Jalan is an advocate, a good legal researcher. I will introduce not much about him, but he is also a fighter and aligned with us for giving his views to the audience, whatever the small audience we have. Sandeep Jalan, advocate. Past Justice, and thank you भगवान जी भाई for giving me this platform. मुझे एक मौका दिया है कि मैं कुछ कह सकूं, मेरे जो अंदर की बात है मैं, ताकि समाज तक जाए वो बात। जहाँ तक नंबर ऑफ जजेस का सवाल है, भगवान जी भाई ने जो बात रखी कि नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज होने चाहिए, डेफिनेटली तो नंबर इंक्रीज तो होने ही चाहिए, मगर आज की सिचुएशन ऐसी है, जो शैलेश गांधी जो एक रिनाउंड आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं, वो इस सब्जेक्ट पे काफ़ी डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा है कि जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस, अगर वही सिर्फ फिलअप कर दी जाए तो भी हमारा मसला पूरा हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मोर कोर्ट्स फॉर से द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, देयरफॉर द पैरामीटर्स मस्ट इंक्रीज ऑल्सो, अगर वो एक बार साइड में भी रख दें तो भी जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो सिर्फ फिलअप कर दी जाए, तो भी हम लोग जो अभी केसेस पेंडिंग हैं और जो नए फाइल होंगे वो एक समय सीमा में उसको उसका जजमेंट दिया जा सकता है। ऐसा शैलेश भाई का एक स्ट्रॉन्ग मत है, वो उस पर काफ़ी गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। मैं भी उस पर थोड़ा बहुत कभी कभी देखता है। मैं अभी जो आपसे कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें हम लोग किस तरह से जस्टिस को थोड़ा सा जल्दी फास्ट कर सकते हैं। मैं खाली उस पर थोड़ी सी लाइट प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। जैसे 138 के केसेस, उसके पहले कमिंग बिफोर टू 138 केसेस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई आदमी कोर्ट में जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ईमानदार आदमी है। हम लोग ने ये देखा है कि जुडिशियल प्रोसेस इज़ ग्रॉसली मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड। उसका लेटेस्ट एग्जांपल हमने रिसेंटली देखा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड कमिट किया बेंगलुरु में। उसके फैमिली और उसके अगेंस्ट में 9 केसेस फाइल हुए थे। तो दिस सिस्टम इज सो वल्नरेबल टू मिसयूज। उसको किस तरह से हम लोग, क्योंकि आखिर वो भी एक केस है जुडिशियरी के लिए, अगर हम लोग जो फ्रिविलियस केसेस हैं उसको कम कर सके किसी भी तरह से, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अपने आप में। वो कैसे कम हो सकता है? तो लीगल नजरिया उसका ये है कि जो आदमी कोर्ट में आता है उसको अपना केस बहुत क्लियरली रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। उसको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, और एक और लीगल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं प्लीडिंग ऑफ जुरिस्डिक्शनल फैक्ट्स। अब होता क्या है अदरवाइज, मैं एग्जांपल विमेंस का ही देता हूं, जो कि केसेस मैन और उसकी फैमिली के उसमें होते हैं। हस्बैंड को रिस्पोंडेंट बनाया, उसके पेरेंट्स को बनाया, उसके ब्रदर्स को बनाया, सिस्टर्स को बनाया, और एलिगेशंस कैसे लगते हैं? रिस्पोंडेंट्स हैज डन दिस, रिस्पोंडेंट्स हैज डन दिस, रिस्पोंडेंट्स हैज। जो एलिगेशंस होते हैं वो क्वा रिस्पोंडेंट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं होते, एक ब्लैंकेट स्वीपिंग एलिगेशंस होते हैं। सो कोर्ट को ये एनफोर्स करना होगा कि जो भी एलिगेशंस लगते हैं कोई भी प्लीडिंग्स में, जो आदमी जब कोर्ट में आता है तो वो
1, 2, 3, 4 सबके अगेंस्ट में सेपरेटली क्लियरली प्लीड करे कि इसका ये गुनाह है, इसने ये किया है, इसके लिए ये जिम्मेदार है। अदरवाइज वेग एलिगेशंस पे नोटिस इशू हो जाती हैं, समन्स इशू हो जाते हैं और केस फिर चलता रहता है सामने। जब कोर्ट ये एनफोर्स करना चालू करेगा कि भाई आपको एकदम क्लियरली लिखना है कि 1 के अगेंस्ट में आपका क्या कहना है, 2 के अगेंस्ट में क्या कहना है, 3 के अगेंस्ट में, जिनको आपने पार्टी बनाया है, ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स होना चाहिए। जुरिस्डिक्शनल फैक्ट्स मस्ट बी क्लियरली अनएम्बिगुअसली प्लीडेड। मैं कहता हूँ 50% केसेस तो वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ये नोटिस किया है कि 70 से 80% केसेस तो बोगस फाइल होते हैं कोर्ट्स में। शायद ये फिगर ज़्यादा भी हो सकती है, मगर मेरा नज़रिया ये है कि बोगस केसेस तो रैम्पेंट फाइल होते हैं। तो सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में इसको इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस बोलते हैं। तो जब कोर्ट समन्स इश्यू करता है, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ 138 मैटर्स का। 138 मैटर्स में क्या होता है, कंपनी अगर अक्यूज्ड है तो उनके डायरेक्टर्स को इनवैलिबली अक्यूज बना दिया जाता है। मगर लॉ ये है कि बीइंग अ डायरेक्टर, मियरली अ डायरेक्टर, ही कैन नॉट बी अरेड एज एन अक्यूज पर्सन। ही मस्ट बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, देन ओनली ही कैन बी अरेड एज एन अक्यूज पर्सन। मगर होता क्या है, इन मैनी ऑफ द केसेस, आई शुड नॉट जनरलाइज, मगर बीइंग अ डायरेक्टर विदाउट एनी एलोबरेटिंग प्लीडिंग्स की ये डायरेक्टर how he is responsible for the day-to-day affairs of the company, he is made an accused person। फिर वो डायरेक्टर रिवीजन में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, एंड दिस इज हाउ द केसेस ग्रोज, फ्रिवलियस केसेस। सो ये इसको यहाँ रोकना जरूरी है केसेस को, कि भाई यू मस्ट क्लियरली प्लीड कि भाई आपका केस क्या है। ये मिसयूज रुकना बहुत जरूरी है कोर्ट्स में। अब हम लोग, ये तो एक ब्रॉड वो है कि प्लीडिंग्स बहुत क्लियर होना चाहिए, कोर्ट को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए कि भाई आप क्लियरली बताइए, या एक स्पेशली टेबल टाइप में पेटिशनर प्लेंटिफ को देना चाहिए कि भाई 1 के अगेंस्ट में ये एलिगेशन है, 2 के अगेंस्ट में ये एलिगेशन है, 3 के अगेंस्ट में ये एलिगेशन है, 4 के अगेंस्ट में ये एलिगेशन है, एंड दैट मस्ट सेटिस्फाई द इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस और रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ इन सिविल मैटर्स। डोमेस्टिक वायलेंस है तो ये 3-4 कम से कम यू मस्ट प्लीड so as to court should take cognizance of it or the exercise jurisdiction over the subject matter litigation. Now if we come to genuine cases में in civil matters there are tribunals, consumer courts हैं, administrative tribunals हैं, national company law tribunal हैं, and then civil courts हैं, district courts जिनको बोलते हैं, बॉम्बे में सिटी सिविल कोर्ट बोलते हैं, which is governed by civil procedure code. So if we specifically talk about commercial disputes, so commercial disputes में एक बहुत अच्छा, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, आई मस्ट से, मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में एक बहुत अच्छा एक्ट आया है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2016, which has come into force in 2019, that apart। उसमें मैकेनिज्म ये है कि आपने सूट फाइल किया, समन्स सर्विस होते हैं सामने वाले को, और इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं आप समरी जजमेंट के लिए। यू मस्ट हैव अ वेरी गुड केस ऑन मेरिट्स सो एज टू अप्लाई फॉर समरी जजमेंट। मगर ये मैकेनिज्म है कि इमीडिएटली यू अप्लाई फॉर जजमेंट, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, आई बिलीव आपको 1 साल 1.5 साल में डेफिनेटली ऑर्डर मिल जाएगा, अगर आपका जेन्युइन केस है और सामने वाले के पास कुछ डिफेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि समरी जजमेंट पहले नहीं था, पहले समरी सूट्स थे, अभी भी समरी सूट्स हैं, समरी सूट्स वर बट देन ओनली कन्फाइंड टू मनी सूट्स। समरी जजमेंट में आप मनी सूट्स के अलावा आपकी जो भी रिलीफ्स है कमर्शियल डिस्प्यूट में आप मांग सकते हैं। सो अगर हम लोग बात करें जेन्युइन मैटर्स की, तो ये जेन्युइन मैटर्स इस तरह से क्विकली रिजॉल्व हो सकते हैं कि आप सूट फाइल करिए, इमीडिएटली आप समरी जजमेंट के लिए अप्लाई करिए, एंड इफ यू आर मेरिटोरियस, इवन पार्ट ऑफ द क्लेम कैन बी ग्रांटेड। It's not that the complete, if you have some kind of admissions where there is an admitted liability, so
you get that portion of that judgment in your favor, and for rest of the matter can go on in trial. दूसरा, अगर हम लोग एक स्पेसिफिकली रिट्स की बात करें, रिट पिटिशंस विच आर ऑर्डिनरी ले अगेंस्ट द गवर्नमेंट बॉडीज, स्टेट हाई कोर्ट्स में जो होती है आर्टिकल 226 में 226 ही ब्रॉडली हम लोग समझते हैं, 227 इज जनरली फॉर चैलेंजिंग ऑर्डर्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स, सो हम लोग वो सब्जेक्ट मैटर थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या होता है कि मैंने देखा है या कोर्ट्स ने भी ऑब्जर्व किया है कि यहाँ की अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल बॉडीज लीजिए या कोई भी स्टेट अथॉरिटीज लीजिए, many times they don't even respond to the representations made to the authorities. I mean, such a trivial thing, which is a very elementary thing in a democracy. We are called the sovereign, but then even the representations, complaints are not responded by the authorities. So for these things also, we have to go to the court. And in 1 or 2 hearings maximum, the court, if the court is satisfied, the writ court direct to decide the representation. But then sometimes the difficulty happens that a turn doesn't come up for the hearing, because even for getting the matter listed is a good task in High Court. I mean, the matter many times it is listed, but then it is not reached. So there could be a situation, the mechanism can be devised whereby the court may constitute bench, or there could be many other things the court can devise, because I am not the appropriate person to tell the court that these matters be taken up immediately. There could be very I mean, ये जो चीज़ है इसका काफ़ी बड़े इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि एक बार अथॉरिटीज, बिकॉज क्या होता है, अथॉरिटीज भी देखती है कोर्ट कहाँ जल्दी से सुनने वाला है, इट विल टेक अगेन ईयर्स for the matter to come up. Sometimes matter does come up immediately also, it depends on the matter, because we generally, it depends on the urgency of the matter also, because we file the matter in the morning and the court does grant hearing in the afternoon also. It's not that the court doesn't grant, but then all matters doesn't have such kind of urgencies, like demolition. Suppose if there is a demolition, the court is alive to the situation and does grant hearing also. But then जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, कंप्लेंट्स की बात है, अगर ये लिमिटेड रिलीव्स होते हैं रिट पिटिशंस में, तो इसको क्विकली रिजॉल्व किया जा सकता है। और इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ के ऊपर वो रहेगा कि ये तो तुरंत मैटर हियरिंग हो रहा है, तो फिर लोगों को आगे कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंड द कोर्ट शुड इम्पोज कॉस्ट ऑल्सो, कि वाई यू आर नॉट, बिकॉज हाई कोर्ट्स हैव ऑब्जर्व देयर इज अ जुडिशियल नोटिस ऑफ हाई कोर्ट्स दैट द अथॉरिटीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इवन रिप्रेजेंटेशंस. So there, if the courts, because the courts does impose cost, it doesn't, it is not that court cost impose नहीं करता है, but then court should be more proactive in imposing cost upon the authorities for such a trivial thing, कि you are not even responding to representations. So ये सब चीजें काफी लॉन्ग रन में इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे कि भाई then authorities would be responding to the representations. हमें सिचुएशन ये क्रिएट करनी होगी एटलीस्ट अथॉरिटीज के साथ में कि वो कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े, केसेस कम फाइल। तो ये ब्रॉड है, इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है, मैं इसलिए मेरे छोटे में मैंने बताया। और जहाँ तक 138 मैटर्स का सवाल है, मैं खाली ब्रॉडली ये कहना चाहूँगा, मेरा सजेशन है ये कि 138 मैटर्स होते हैं, चेक डिजॉनर के मैटर्स होते हैं, उसमें सिविल रेमेडी में सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल में 138 मैटर्स, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोविजन है कि डिसऑनर ऑफ चेक अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल ऑफेंस. बट देन व्हाट हैपेंस, यू नो, as a matter of course people file 138 proceedings, criminal proceedings, without really realizing that it's a trial based remedy. The entire trial takes place because it's a criminal matter, because a person cannot be sent to jail just for the sake of proceeding has been filed. But then यही proceeding अगर आप civil suit में करते हैं तो there is a probability कि आपको जल्दी से judgment मिल जाए, मगर फिर वही बातें हो जाती हैं कई बार कि उसको एनफोर्स भी करना होता है, एनफोर्समेंट में थोड़ा समय भी जाता है.
क्रिमिनल में अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है एक्यूज के ऊपर, कि उसको डर होता है, मगर जो सीजनड होते हैं उनको पता होता है कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट करना है। तो प्लस माइनस दोनों अपनी अपनी जगह हैं कि सिविल और क्रिमिनल के, मगर अगर फास्टर अगर आउटकम चाहिए तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि चेक डिसऑनर केसेस में आप सिविल सूट फाइल करिए, आपको जल्दी से रिजल्ट मिलेगा उसमें। आर्बिट्रेशन तो अपनी जगह पे चलता ही है। आर्बिट्रेशन आज के समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, मतलब थोड़ा सा मतलब एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव हो गया है आर्बिट्रेशन, जो कि प्राइवेट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं। देयर मस्ट बी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। और आर्बिट्रेशन क्या हो गया है कि थोड़ा टेक्निकल हो गया है, बहुत छोटी छोटी सी बात पे आर्बिट्रेशन अवार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एक तो एक्सपेंसिव है, ऊपर से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इतनी मेहनत और वापस से रीस्टार्ट करना, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। सो आर्बिट्रेशन जो इनिशियली एक जो स्टार्टिंग से लोग आज भी इंटरनेशनल लेवल पर आर्बिट्रेशंस होते हैं, स्टिल इट्स एन इफेक्टिव रेमेडी, मगर बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप आर्बिट्रेशन में जाइए। लेकिन जहाँ न्याय नहीं मिलता है वहाँ पे आर्बिट्रेशन इसलिए होता है कि कम से कम रिजल्ट तो आ रहा है। अगर बस वही बातें हैं कि इट्स हैज बिकम वेरी टेक्निकल एंड एक्सपेंसिव, तो वो सब चीज़ें अगर कंट्रोल में हैं या उसको आप कवर कर सकते हैं तो आर्बिट्रेशन इज स्टिल वेरी इफेक्टिव रेमेडी, बिकॉज उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन तो होता है अलग अलग स्टेजेस पे, मगर एटलीस्ट जो मेन थिंग है वो तो प्राइवेटली रिजॉल्व होता है डिस्प्यूट। देयर आर इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन मर्चेंट चेंबर्स एंड देयर आर मेनी आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। द आर्बिट्रेशन हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड where there are big players who give arbitration services to the business community at large. And of course, when the matter goes to the High Court for appointment of arbitrators, private arbitrators are appointed, lawyers, judges, retired judges. So it is an effective remedy that part. ये broad चीज़ है। अगर आपको specific कुछ queries हो तो, या फिर वो query session last में होगा तो आगे क्या और it's over. that's it. Yeah, thank you so much. So thank you very much, Sandeep. You have elaborated the audience, particularly the press people, on the intricacies of filing suits and how you get the result as early as possible, although it's a delayed judiciary. But whatever the points he has referred to, if it can be implemented and carried forward in one's filing a suit or writ petition or whatever it is, it is not only that, it can cover consumer courts, labor courts, and civil courts, and all the level, right from talukas court, district court, high court and supreme court. Now I present before you our senior trustee Venkatraman Muralidhar to address the 15 years, the only thing that I have seen growing is the pendency of the case. Whenever you look any election result, even the recent Maharashtra Assembly election result, the one page, Times of India, everything covers. Last election 5 years ago, the criminal cases of the elected MLAs was 30%. This year it is 42%, as if it is an achievement. It's a big achievement. And these elected members, photographs are printed, not the innocent elected members. The media, I agree. If a dog bites a man, it's not a news.
If the man bites a dog back, it becomes a news. This is the way the media is covering. I know, if you report the correct thing, you all will be jobless. But sometimes someone has to say this. Who suffers? Not the politicians, not those who are in power, not the rich people, not the mighty people, the common man, who are no one to speak for. Today, 40% of the elected members in the Lok Sabha, Rajya Sabha Assembly, they all have criminal background. They can get elected because they are not being convicted. And these are the people who see to it there is further delay, so they can get elected again and again. So one of the main causes is that. Another thing, why I was an industrial, other thing and all, but the thing is, during the course of worldwide travel, I travel all over the world. I used to travel, not now. The thing is that whenever I meet people, they talk of big things. But in the Indian scenario, I met so many people, whenever I see someone say, I strongly believe in the Indian judicial system, that means you can easily say this man is corrupt, he is an violent criminal. Only a criminal says, I strongly believe in the Indian judicial system. So without a judge, you can convict him, you can send him to jail if someone says that. It's a real fact scenario. But the newspaper reports, this man believes in Indian judicial, his photograph is printed. It's a clear proof, it's a criminal. Yet no innocent man, no clean man will never say, I believe in the Indian judicial system. Today, the budgetary allocation, the government says no budget. But the thing is that virtual court, India is big in technology. Today we are talking of on the moon and space and other things. We are too good. IT companies world over, Google, all Indians, Microsoft, Nadella. I met Nadella in USA. I travel to US every year. I met Sundar Pichai. All Indians. But today, virtual court in India, it costs nothing. No need to drive the car, no need to park the car, no need to all these things. It can become effective. It was existing. Recently, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Gujarat, they totally abolished the virtual court. We want people to come. We want to feel this thing. Why? It's not happening. If there is a deliberate judicial delay, which is happening in connivance with the criminals, other things. So, to put in a nutshell, my experience, though I never stepped, let me tell you, I never stepped till today in any high court or Supreme Court, though I have seen from outside. I don't want to dirty my feet. I never stepped, though I had been to Supreme Court, High Court or outside. I didn't want to step in. The thing is that these things, any Supreme Court, High Court, the biggest of the criminal, let's say I committed a murder, the maximum sentence they can offer is what? Life imprisonment. Life imprisonment for a human being is a maximum sentence. But believe me, according to me, the day I decide to file a case in any court, that day, when you decide without filing, that means you are already sentenced to life. You have to go lifelong. Tariq pe Tariq, Tariq pe Tariq. His own cases is pending for the last 40 years. Though he has met all the Prime Minister, I am working with him. I met Supreme Court Chief Justice, I invited West Bengali, he was the Law Minister, Chief Justice of India, all this, he has met all of them. Yet 40 years plus, this case is still pending Tariq pe Tariq. So according to me, the judges need not pronounce a life imprisonment. In today's Indian judicial system, the reality, the day I think I should go to court,
you are sentenced to life. I'm telling you, till life, in this one case, 45 years, is struggling. Nothing is removed. So, the real life imprisonment, the judges, they deliver the life. You should see the souvenir. The man in prison for 47 years. After 47 years, the judgment came. He was in jail. He was pronounced to be innocent. But what remedy he got? This is the reality of India. I don't want to speak anymore, and I can't. I wish I could. But you are all intelligent people. I can see that. But all I can say is, I am grateful to you on behalf of the organization. I am thankful to you on a second Saturday holiday. Yet you left your home and came here and listened to it. I am grateful to every one of you. All I request you is, think of the common man, think of the suffering, think of the reality, think of your own children, whether such system can you and your family and the future generation can bear. Luckily, you and I have been brought up by parents who have molded us. My father, mother sacrificed their life. The way you are doing, you also have children, you are sacrificed. But tomorrow's children, they listen more to WhatsApp than to you. It's the reality of today. Today's children, they see everything. When I travel by metro and other things, everyone's eyes is down. They don't know which station is coming. Believe me, after I returned from US, I decided let me go on the Metro New Road. In my own eyes presence, just 10 days ago, about 18 passengers, they missed the station because they were busy with the WhatsApp. Suddenly, they asked me, I said, I also don't know. What happened? I had to get on. I already read that, but he was busy on the WhatsApp. This is the generation that has come. But they are the people who are going to suffer worst in future if this judicial system continues. The answer lies within you. The answer lies in the pen, what you write. And today, you can wake up the masses and let's hope India becomes great. The Africa save judiciary, save nation. That's a reality. Thank you, ladies and gentlemen. I hope you could understand something what I spoke. Though this is the first day I'm getting out after my surgery. But I really enjoyed being with you. Thank you so much for coming. Thank you. Okay. इस प्रेस मीटिंग में आए हुए सभी प्रेस वालों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। Okay. फोरम फॉर फास्ट जस्टिस का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के न्याय तंत्र में ऐसा सुधार हो कि न्याय के जो सिद्धांत है उनका पूरी तरह से पालन हुए। और न्याय का सिद्धांत जो है ना वह 3 है। ये हम नहीं कहते, ये न्याय तंत्र के जज स्वयं कहते हैं। समय पर न्याय, सभी को न्याय और समान न्याय, जो आज हमारे देश में किसी को मिलता नहीं है। और ये आने के लिए इस देश की जनता को बाहर आना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए महानुभावों ने बताया कि न देश का चुने हुए प्रतिनिधि इसमें इंटरेस्टेड है और न ही इस देश का न्याय तंत्र। 5 करोड़ केस बाकी हों वो भी गलत है, और क्रिमिनल कानून बनाते हों ये भी गलत है। तो इस देश में न्याय तंत्र में सुधार लाने के लिए एक तरफ तो हमारा निगोशिएशन चालू रहेगी, बातचीत चालू रहेगी, जिसके लिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस सरकार के साथ, न्याय तंत्र के साथ लगातार बात करती जाती है। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम सबको बहुत ध्यान देना आवश्यकता है, खास करके जनता को। पहला तो यह है कि इस देश के न्याय तंत्र को सीखना होगा कि 1, 2, 3, 4 से अधिक कम से कम सुनवाई न होनी चाहिए। 34 तारीख देने से पहले कम से कम न्याय तंत्र के जज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि उनका कर्तव्य क्या है। जब तक इस देश के जज अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे तब तक इस देश में न्याय तंत्र समय पर संभव नहीं है।
क्योंकि खुद कहते हैं देरी से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। तो 5 करोड़ केस बाकी है, तो 5 करोड़ लोगों को परेशान करने की जिम्मेदारी किसको जाती है? हमारे देश के न्यायतंत्र को। और दूसरी तरफ जटिल कानून, कॉम्प्लेक्स लॉ। मैंने सिंगापुर का थोड़ा सा स्टडी किया, सिंगापुर गया था। मैंने अपनी गाड़ी को सिंगापुर के न्यायतंत्र के अंदर जा रही, वहाँ पर जब मैं गया ना तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 10 एडवोकेट भी नहीं देखे। और हमारे यहाँ तो 1 मील पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट है, तब से काले कोर्ट हमको दिखाई पड़ते हैं। कारण एक ही है कि हमारे यहाँ कानून जटिल हैं और कभी भी पिछले 70 सालों से किसी को समय पे न्याय नहीं मिल रहा। लोगों का विश्वास न्यायतंत्र से उतर गया और इसीलिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की हम लोगों ने रचना की है। और इसी उम्मीद के साथ इस देश की जनता हमको संपर्क देगी और हम सब मिलकर, क्योंकि जो कानून पे बैठे हैं उनको तो इंटरेस्ट नहीं है। अगर 5 करोड़ के केस बाकी हो और अगर वो कुछ करते नहीं हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, कानून बनाने वाले को इंटरेस्ट नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि इस देश की जनता न्यायतंत्र में सुधार के लिए बाहर आए। अधिक समय न लेते हुए मुख्य मुद्दों पर आपको बताता हूँ। पहला तो कम से कम 1, 2 या 3 हियरिंग या 4 हियरिंग से ज़्यादा ना दें। दूसरा, जो आदमी प्रार्थना के लिए जाता है, आज आप एप्लीकेशन दीजिए, पहली तारीख आपको 3 महीना के बाद देते हैं। आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर आदमी प्रार्थना के लिए जाता है उसको 3 महीने के बाद तारीख दी जाती है, तो यही सबसे बड़ा अन्याय होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं कहते हैं कि गरीब आदमी को आज की तारीख में हिंदुस्तान के न्यायतंत्र में जाना ही नहीं चाहिए और वो जा ही नहीं सकता है। जबकि संसार का बरसों से चला आ रहा है कि 3 चीज़ें किसी भी देश के अंदर मुफ्त होनी चाहिए। न्याय मुफ्त मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मुफ्त मिलना चाहिए और शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ इतना महंगा न्यायतंत्र है कि गरीब आदमी तो न्यायतंत्र में जा ही नहीं सकता है। और इसी को सुधारने के लिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस ने पिछले 12 वर्षों से लगातार, सलमान खुर्शीद जी थे लॉ मिनिस्टर, हम लोग दिल्ली गए थे, उनके घर पे बातचीत की। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो सरकार को सलाह देती है कि कौन से परिवर्तन करने चाहिए, वहाँ भी गए। मेरा अनुभव, यूँ कहिए हमारा अनुभव, क्योंकि भगवान जी भाई साथ थे, उनके वजह से ही मुझे मौका मिला। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी मिस्टर मल्होत्रा करके थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कम से कम 300 रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में दिए हैं, पिछले 50 साल में एक भी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आप मुझे बताइए, लॉ कमीशन बनाकर अगर उसके रिकमेंडेशन को सरकार स्वीकार नहीं करती है तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। यानी तय ये हो जाता है कि न न्यायतंत्र को परिवर्तन करना है, न कानून बनाने वाले को करना है। और जब भी जिस देश में कानून का भय नहीं होता, न्यायतंत्र का भय नहीं होता, वहाँ हमेशा अराजकता फैलती है। और वही हालत आज हमारे देश में है कि गलत करने वाला बिंदास गलत करता है। और आप छोटा सा उदाहरण दे दूँ लाइव, पूरे मुंबई के अंदर पिछले 25 सालों के अंदर 1 लाख परिवार बेघर है। बिल्डर ने पैसे लिए, लोगों को फ्लैट नहीं दिए, कोर्ट में लोग जाते हैं, कोर्ट में 10-10 साल तक केस चलता है। सोसाइटी रीडेवलपमेंट में गई, आधा काम किया, छोड़ दिया। बेचारे जिन लोगों ने वहाँ पे रहते थे आज वो रास्ते पे आ गए। बहुत तो ऐसे भाड़े के मकान थे जिसको तोड़ दिया गया, डीए बना लिया, एग्रीमेंट भी बना लिया कि भाड़ा भी देंगे और आपको फ्लैट भी देंगे, न भाड़ा दे रहे न फ्लैट दे रहे। इसका एक ही कारण है, कारण ये है कि हमारे देश में कानून का और न्यायतंत्र का किसी को डर नहीं है। आने वाले दिनों में फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से हम इसमें सुधार करने के लिए अपना कदम उठाएंगे और पूरा विश्वास है कि आप सबका हमें साथ मिलेगा और जनता के साथ से ही ये परिवर्तन संभव है। सभी को जय हिंद। आशीष मेहता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, पर 2005 से मैं फोरम फॉर फास्ट जस्टिस से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी समझ लिया था कि अगर आप जुडिशली लिटरेट नहीं है और अगर ये देश में जुडिशल रिफॉर्म नहीं आ रहा है तो उसके लिए आगे चल के हम सब नागरिकों को साथ में मिलकर कुछ करना है। और पिछले 19 साल से हम लोग अपने यथाशक्ति प्रयत्न करके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं
आपको चंद केसों के बारे में बताता हूँ जो मैं चाहता हूँ आप सब अपने वर्तमान पत्रों में लिखें। 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ जिसमें 3000 आदमी से ज़्यादा मारे गए। मुझे पक्का विश्वास था, तब मैं खाली 16-17 साल का था, कि भाई 2 साल में जो भी है सब हो जाएगा और सभी गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। आप गूगल में देख लीजिए इसका क्या हुआ, मुझे पता है पर मैं आपका समय जायज़ नहीं करना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद गिर गई 1992 में, उसके भी केस का क्या हुआ आप समझ लीजिए। 1993 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्लास्ट हुए, नहीं, बम्बई में 14 जगह पे ब्लास्ट हुए थे। 14 जगह पे ब्लास्ट हुए, उसमें कितने आदमी मरे, उनके कितने गुनहगार पकड़े गए, इसमें से कितनों को फांसी हुई, ये भी आप गूगल पे सर्च कीजिए। आप उसकी प्रोसीजर देखिए कैसे हुआ। डेली जज सुनवाई करता था, फिर भी केस का चुकादा आते आते 15-16 साल लग गए। ये तो समस्या है। अभी इसका समाधान क्या है? निस्संदेह जो सब करते हैं वो हमें करना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय बजट बनते हैं, जो बजटरी अलोकेशन है, वो अब 0.30% है एनुअल, उसको बढ़ा के 3% कर दीजिए। कम से कम 10 गुना बजट कर दीजिए, जजों की संख्या 10 गुना कर दीजिए, कोर्टों की संख्या 10 गुना कर दीजिए। इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। जब ज्यादा संसाधन हम ये सब समस्या के लिए अलोकेट करेंगे तो इसका फटाफट परिणाम आना चालू होगा। इसके अलावा कुछ आपको दिखता है कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब कोई समस्या खड़ी होती है, अगर हमारे पास कोई केस आता है तो हम वकील को पैसे देते हैं ना, तब जाके हम अपना केस लड़ पाते हैं। इसी तरह से सरकार को भी अपने बजट में ज्यादा जजेस के लिए, ज्यादा कोर्ट्स के लिए, सिंपल प्रोसीजर्स के लिए प्रावधान करना ही चाहिए। उसके बगैर ये सारी गाड़ी रुक जाएगी। जर्मनी में सुबह सुनवाई होती है, शाम को जजमेंट आता है। अगर जर्मनी कर सकता है तो क्या भारत वाले नहीं कर सकते? हम उनसे श्रेष्ठ है और रहेंगे, पर हमें उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। मैं सरकार से, मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को विनती करता हूं कि सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का वीडियो रिकॉर्डिंग करें। हर बार हर केस में मालूम पड़ना चाहिए कि जज ने कितनी डेट्स दी, क्यों दी। आपको जज खुद घबराएगा क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। सबको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है और किस मुद्दे के चलते जज को डेट देनी पड़ी। तो हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों क्या होना चाहिए। वर्तमान पत्रों में उसकी ज्यादा से ज्यादा खबर आएगी। और एक सुझाव है, कभी ये देश में टेलीफोन पे खाली सरकार का नियंत्रण था। सरकार ही टेलीफोन लैंडलाइन बनाती थी और इश्यू करती थी, उसके अलावा कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं था। आज पिछले 30 सालों में अनेक प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं और कोई कह नहीं सकता कि हमारे यहाँ टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है और इतनी अत्याधुनिक सुविधा के साथ है कि हमें आज टेलीफोन के बारे में कोई कभी सोचना ही नहीं पड़ता। यह कंसेप्ट मैं प्राइवेट कोर्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूँ। प्राइवेट कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करो, आर्बिट्रेशन है, मीडिएशंस है, और भी 50 कोर्ट्स आप बना सकते हो। सभी में छोटे बड़े मुद्दे जो है वो सभी की सुनवाई होनी चाहिए, सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, सभी के जजमेंट होने चाहिए। क्या सरकार द्वारा अपॉइंटेड जज ही अच्छा है, बाकी कोई जज अच्छा नहीं हो सकता क्या? हमारे पास अच्छे आदमी है जो आर्बिट्रेशन में बैठते हैं, मीडिएशन में बैठते हैं, भले सिविल कोर्ट में भी बैठे, हम प्राइवेट कोर्ट्स में भी बैठे। जिस आदमी ने जज के हिसाब से 10 साल काम किया है वो अपनी प्राइवेट कोर्ट बनाए, उसमें हियरिंग हो, उसमें रिकॉर्डिंग हो, उसमें केस की दोनों पार्टी अपना केस रखे और जजमेंट आए। वो जजमेंट को कोई चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि पता है वीडियो रिकॉर्डिंग है, पता है एक एक्स जज ने जजमेंट दिया हुआ है। अगर ये नहीं कर सकते तो समझिए ये जो 5 करोड़ पे पहुंचे हैं वो धीरे धीरे 10 करोड़ पे पहुंचेगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत का जो सभी 26-28 राज्य है वो सभी टूट जाएंगे। सब कहेंगे हमको नहीं रहना है। और ये दिन देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जुडिशियल रिफॉर्म्स को लाइए, जल्दी लाइए, जोरदार तरीके से लाइए। अगर हम टेलीफोन की संख्या बढ़ा सकते हैं, अगर हम चांद पे अपना यान उतार सकते हैं, अगर हम रॉकेट्स बना सकते हैं, अगर हम डिफेंस इंडस्ट्री पूरी डेवलप कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर सकते हैं, हम कृषि में डेवलपमेंट, हमने कृषि क्रांति लाई है, तो ये चीज़ क्या है? कुछ भी नहीं है। जरूरत है सिर्फ संकल्प की, और वो भी सरकार द्वारा।
अगर सरकार ये नहीं दे सकती है तो हम खड़ा करें, हम संकल्प करें। अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे आगे चलेगा। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके वाचकों को कहिए कि ये मूवमेंट में जुड़िए, अपने आप को जुडिशली लिटरेट कीजिए और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार पे दबाव बनाए। धन्यवाद।